So random variables and its probability distribution. Today we will wind it off. So two questions were given to you in your homework, the 14th and 15th from the NCERT textbook. I'm sure some of you must have tried this 14th question, a very simple problem wherein what is asked? There's a class of 15 students with the following ages. One student is selected in such a manner that each has the same chance of being chosen, and the age x, age, wait for a second, my pen is not working. Yeah, and the age जो है वो x से डिनोट करी है. What is the probability distribution of x, और फिर वही mean, variance और standard deviation पूछा है. So the idea is look at the ages. तो x क्या क्या values ले सकता है. X can be 14, but check it out, 14 is coming twice. तो मैं यहां लिख लेता हूं कि it is, चलो ये twice है 14, then 15, then 16, 17, 16, 17. Sir, 216, sir. Yeah, yes, it's the next line I just noticed. 16, 17 is again twice. 3 है, sir. 3 है. 1, Yes, sir. 2, oh yeah, this one. 17 भी आ गया. And then 18 is once. Yes, sir. 19 is twice. And 20 भी 2 बार है, 21 एक बार है. okay, 20, 20, and then 21. राइट right. तो x अब ये वैल्यू जो ले सकता है, ये तो रिपीटेड आ रही है, तो बोलेंगे तो हम एक ही बार. तो x कैन बी 14, यहाँ पे 15. 17 2 बार ही लिखे, 3 बार है. कौन सा नंबर? 17. अच्छा अच्छा, लिखना रह गया, हम काउंट तो कर लिया था. या और 17, 18, 19, 20 एंड 21. तो x basically can be actually only 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21. राइट. तो अब टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? 15 स्टूडेंट्स हैं. आप सोचिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ p of x is equal to 14. 14 is coming two times. तो 2 केसेस आउट ऑफ 15 फेवर कर गए. इसी तरह से p of x is equal to 15, वो 1 केस हो गया. p of x is equal to 16, 2 possibilities out of 15, and so on. तो जस्ट एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की तरह आपने वो अरेंज करके बना लिया, एंड देन यू कैन इजीली गेट दोस प्रोबेबिलिटीज. Once I have all these probabilities, I need to make the table for that. और टेबल के बाद फिर आप इजीली मीन वगैरह निकाल सकते हैं. So this is x and this is px. So 14, 15, 16 and so on. So that's a very simple and straightforward question. Again, this is a very simple question. If not tried, do it today in your homework. बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है. अब कुछ क्वेश्चंस अलग लेंगे, नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी. 3 defective bulbs are mixed with 7 good ones. Right? तो probability of defective bulb बेसिकली क्या हो गई? D से defective कर दिया, 3/10, क्योंकि 3 डिफेक्टिव को मिक्स करा था विथ 7 गुड वन, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन दैट इज 7/10. लेट x बी दी
number of defective bulbs when 3 bulbs are drawn. So X represents defective bulbs. So X represent number of. So X can be 0, 1, 2 और 3. तो अब आपके पास P of X is equal to 0. What does that mean? 3 बल्ब ड्रॉ हुए, सैंपल ऑफ 3 इज ड्रॉन, और तीनों आपके नॉन डिफेक्टिव माने गुड हैं. तो ये हो जाएगा, एंड विच इज सिंपली 7/10 इंटू क्या होगा? Will it be 7/10 or 6/9? 6/9. Check it out. If nothing is mentioned, you should consider this as a case of without replacement. Right? तो 3 बल्ब को ड्रॉ करवा दिया, ये आ जाएगा. इसी तरह से when we talk about Px is equal to 1, x equal to 1 simply means we should have 1 defective and 2 good one. But याद रखिए, डिफेक्टिव सेकंड वाला भी आ सकता था और थर्ड वाला भी, लाइक दिस. तो पहले वाले की जो भी प्रोबेबिलिटी है ये, और जी की क्या है? 7/10 इंटू 6/9, और इसी का थ्राइस हो जाएगा. सेम वे यू विल बी एबल टू गेट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3. बस उसे एक टेबुलर फॉर्म में कर दिया. यू विल हैव योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. इन्होंने कहा नहीं है कि आपको वो पीडी की टेबल बनानी है, बट ऑफ कोर्स जब मुझे मीन और वेरिएंस की बात करनी है तो इनिशियली आई मस्ट हैव दैट टेबल, और फिर टेबल के बाद आई एम गोइंग टू अप्लाई दी फॉर्मूलास. और फॉर्मूला में फिर बता रहा हूं, दिस टाइम रिड्यूस सिलेबस में नहीं है. सिर्फ पीडी टेबल तक बनाना आपको आना चाहिए. रेस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वन शुड नो, नॉट फॉर सीबीएसई एटलीस्ट. A very similar question for your homework. पढ़ के देख लीजिए, पढ़ते ही समझ आ जाएगा. Check out this question. In a game, 3 coins are tossed. A person is paid ₹5. Profit है उसको कब? If all heads or all tails will come. Otherwise, in remaining cases, he will have to pay ₹3 if he get 1 head or 2 heads. Right? So means all other cases में he will be paying ₹3. What can he expect to win on the average per average game? तो आप चेक करिए, एक्सपेक्ट टू विन का मतलब आपको क्या निकालना है? E of x, दैट इज मीन आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में. तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले वो मेरी पीडी वाली टेबल होनी चाहिए. दी सैंपल स्पेस इज एच एच एच, 3 कॉइन्स है ना, तो एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, और फिर हो जाएंगे टी वाले केसेस, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी. According to the question, what is said? If either he gets all head
और ऑल टेल्स, तब तो ही इज गेटिंग ₹5, ही इज पेड. Otherwise, in all cases, there is a loss of ₹3. तो -3 हो जाएंगे in all remaining 6 cases. तो चेक करिए, अगर हम इस केस में प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी के केस में आपके पास हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट? एनीवन? आपको अल्टीमेटली क्या बनाना है ये सोच के चलिए. यू नीड अ टेबल लाइक दिस, और एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी पूछ रहे हैं? अमाउंट की. अमाउंट एक्स है, राइट? तो अब अमाउंट अगर एक्स डिनोट कर रहा है, एक्स डिनोट्स द अमाउंट ही विंस और लूजेस. तो एक्स सोचे क्या क्या हो सकता है अगर ये हेड 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 आ जाता. तो तीनों केस में उसको ₹15 मिल रहे हैं, तो ₹15 इस केस में मिल रहे हैं, और इस केस में ₹15 टोटल मिल रहे हैं. नहीं तो इन एवरी केस उसको क्या बताया गया है? ही विल हैव टू पे ₹3 इफ ही गेट्स वन हेड और टू हेड्स. वन हेड हो या टू हेड हो, तब उसको ₹3 पे करने हैं. तो इस केस में ₹3 उसको पे करने हैं, इस केस में ₹3 एंड सो ऑन. तो इसका मतलब पर्सन इज पेड 5 इफ ही का. हाँ, इस केस में 15 नहीं हो रहा है, तीनों हेड आने पर उसको टोटल ₹5 मिल रहे हैं. एवरी हेड के ऊपर 5 नहीं है. लैंग्वेज को एक बार अगर हम फिर ध्यान से इंटरप्रेट करें, तो ₹5 मिल रहे हैं, या उससे लॉस हो रहा है इतने रुपीस का. दैट्स इट. तो टेबल आपकी ये बनने वाली है. तो ₹5 का कब का प्रॉफिट है? 2 केसेस आ रहे हैं आउट ऑफ 8 केसेस, रिमेनिंग आ गया 6/8. तो दैट्स द ओनली टेबल फॉर दिस क्वेश्चन. यहां पर ये नहीं कहा है कि टेल आया या कितना आया, उसमें लॉस किस तरह से है. सीधा कहा गया है टोटल ₹3 देने पड़ेंगे इफ इन ऑल रिमेनिंग 6 केसेस. तो ये सिंपल हो गया. हमने जो एनसीईआरटी का एक सिमिलर क्वेश्चन किया था, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो दिस इज मच इजियर इन दैट केस. बस अब तो सीधा आंसर आ चुका है. देयर इज अ लॉस. पता चल रहा है मीन आप जब निकालेंगे तो वो आ रहा है. व्हाट इज द मीन यू आर गेटिंग? समीशन एक्स इंटू पी एक्स. सो 5 इंटू 2/8 प्लस में -3 इंटू 6/8, एक्स पी एक्स हो गया. सो 10 -18/8, विच इज -8/8 -1. तो इसको लॉस -1 आने का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू का, कि चांसेस ऐसे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसको लॉस का है ऑफ ₹1. Three cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 playing cards. Let a random variable x denotes number of hearts. Number of hearts. Find the mean and variance. So check it out. Number of hearts कितने आ सकते हैं? x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x represents number of hearts. So clearly x can be 0 हार्ट आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए और 3 आ जाए.
क्योंकि 3 कार्ड्स को ड्रॉ किया गया था विद रिप्लेसमेंट। तो बस अब आपको लॉजिकली सोचने, P ऑफ x इज इक्वल टू 0 का मतलब तीनों नॉन हार्ट आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट आने की क्या रहेगी? 13/52। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हार्ट कार्ड, दैट इज सिंपली 39/52। डू रिमेंबर, यहां तो चलो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर कितना आ गया, 1/4 एंड 3/4। अगर ये केस विदाउट रिप्लेसमेंट होता, तब आप इसको लोअर फॉर्म में मत ले आना। सोचकर देखिए, अगर ये केस विदाउट रिप्लेसमेंट होता, तो पहले कार्ड की अगर 13/52 है, अगले की 12/51 हो जाएगी। तो इसीलिए लोअर फॉर्म में नहीं लाना होता प्रोबेबिलिटीज को व्हेन इट इज अ केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। विद के अंदर तो हर एक बार ये 1/4 ही रहने वाला है। सो P ऑफ x इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया है कि तीनों बार, ये इसको मैं P ऑफ n कह देता हूं, और ये P ऑफ h कह देते हैं, हार्ट एंड नॉन हार्ट। तो तीनों केसेस नॉन हार्ट आ जाए। 3 बार टॉस, 3 कार्ड ड्रॉ हुए हैं, तीनों नॉन हार्ट का मतलब सिंपली वो हो गया 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। इफ दिस आइडिया इज क्लियर, एक बार बस ये स्टार्टिंग पहचान बनने की है, उसके बाद तो हमें x इक्वल टू 1 इजीली पता है। 1 का मतलब 1 हार्ट आ जाए, 2 नॉन हार्ट आ जाए। और सिमिलरली सेकंड नंबर पे आ सकता था हार्ट, या सॉरी, या थर्ड नंबर पे आ सकता था। तो सिर्फ पहले वाले की प्रोबेबिलिटी मैं लिख लेता हूं, और इसका हो गया 3 टाइम्स। सिमिलरली यू कैन राइट px इज इक्वल टू 2 एंड px इज इक्वल टू 3। Get that in a tabular form and hence find the mean and variance. Any doubt to anyone? Now, क्वेश्चन लाइक दिस जो मैंने अभी जस्ट आपको ये करवाया है, ऑफ द विद रिप्लेसमेंट, स्पेसिफिकली विद रिप्लेसमेंट, there is another very simple approach which is known as a Bernoulli trials or binomial distribution. ग्रेड 11th में हमने करी थी बाइनोमियल थ्योरम, एक बेसिक आइडिया ही लिया था। सो उसकी जैसा ही एक एक्सप्रेशन, आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है जिसकी हेल्प से वन कैन इजीली फाइंड द मीन एंड वेरिएंस even without making that complete table of probability distribution. वो केसेस यहां देखो, 3 केसेस आ रहे हैं। इन सर्टेन केसेस इट मे बी 4 और इट मे बी 6 एज वेल। अब वो कितने आएंगे, वो अगर आप एक एक केसेस लिखकर काउंट करते हैं, तो देर इज अ चांस कि आप कोई केस मिस कर सकते हैं। या आप सोचिए प्रोबेबिलिटी का 11th क्लास का कॉन्सेप्ट, तो समटाइम्स दे मे बी से डिफिकल्ट। उसके लिए एक इजीनेस के लिए हमारे पास जो रूल है, दैट इज नॉन एज अ बर्नौली थ्योरम। और बेसिकली इसकी हेल्प से हम बात कर रहे हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप चेक करिए, यहां इस केस में क्या होने वाला है कि लेट, स्टार्टिंग से पढ़ के देखिए, लेट there be n independent trials in an experiment and let the random variable x क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ सक्सेसेस, एज यूजुअल जो हमने अभी तक केस लिए थे।
Let the probability of success is P and getting a failure is Q. So that P plus Q is 1. So that is for sure. Probability of failure plus success is 1. Then P of X is equal to R is given by this formula. कैसे अप्लाई करते हैं दैट आई विल डिस्कस यूजिंग वन एग्जांपल. और इस केस में चेक करिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस टू नोट. फर्स्ट वन, experiment is performed for a finite and fixed number of trials. एक्सपेरिमेंट आपका फाइनाइट होना चाहिए बिकॉज इन प्रोबेबिलिटी देयर मे बी अ प्रॉब्लम्स वेयर इन इट इज द इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंट. तो इनफाइनाइट के क्वेश्चंस वो मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं दैट आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास, जो हमारा फोर्थ पीरियड आज है ना ट्यूसडे. सो आई एम गोइंग टू टेक दोस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ मिसलेनियस जो हमने अभी तक कवर नहीं करी हैं, मेनली इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंट की होंगी. सेकंड वन, each trial must give either a success or failure. सिर्फ सक्सेस या फेलियर होने वाला है. तो जनरली हमने वही केसेस को कंसिडर किया है. एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल याद करिए हमने कोई ऐसा सिचुएशन किया हुआ है कि एक एमसीक्यू टेस्ट आ गया, तो स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट गेसेस द आंसर और स्टूडेंट चीट्स द आंसर. तो चीटिंग वाला केस, तो वो वहां पर तीन केसेस हो रहे हैं. तो वो इस तरह में पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना. हमारे पास सिर्फ दो चीजें होनी चाहिए, सीधा सक्सेस या फेलियर. सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी से डिनोट करेंगे, स्मॉल पी, और फेलियर की स्मॉल क्यू से. थर्ड कह रहे हैं रूल क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज सेम. प्रोबेबिलिटी सेम रहनी चाहिए. पिछले केस में देखो याद है ये आई थी 13/52 हार्ट्स आने की. तो अगली बार भी कह रहे हैं सेम रहनी चाहिए, अगली बार भी सेम रहनी चाहिए. ये कब पॉसिबल होगा? व्हेन इट इज अ केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट. तो इस कंडीशन का मतलब ये हो जाता है. तो सिर्फ एक मेन ये विद रिप्लेसमेंट सोचना है, अदरवाइज यू विल फाइंड के बाकी सब चीजें आपको इजीली नॉन है क्लियर होंगी क्वेश्चन में. बाइनोमियल ट्रायल्स या डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं हम बी ऑफ एन कॉमा पी, वेयर एन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार एक्सपेरिमेंट करा गया. पी क्या है? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. एंड फॉर्मूला फॉर दैट px is equal to r becomes ncr into p power r and q की power n minus r. Please make a note of this formula. Then I will take the problem. For a Bernoulli trial, mean is given by a direct formula NP and variance is given by a direct formula NPQ. So standard deviation of course variance का square root हो जाता है, वो ये हो जाएगा. We are dealing with these formulas without any proofs. Please check out this question.
कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। एक्स क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। मतलब एक्स अगर नंबर ऑफ हेड्स है तो वही आपसे पूछा है ना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। एक्स इज नंबर ऑफ हेड्स। तो एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? एक्स कैन बी 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड और 3 और 4 हेड्स। तो आप चेक करिए यहां P का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। सिंपली हाफ हो जाएगा। Q, क्योंकि यहां हेड आएगा या टेल आएगा, और फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम टॉस करा गया है, ये भी हाफ हो जाएगा। तो आपके पास सिंपली एक्सपेरिमेंट किस फॉर्म में बनने वाला है? फॉर्मूला सोचिए क्या लिखवाया था। एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर, विच फर्दर एटलीस्ट इन दिस केस सिंप्लीफाइज टू, क्या हो रहा है ये? दोनों के बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, आर से आर कट गया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पी एक्स इज इक्वल टू आर। आपको क्या क्या चाहिए था? पी एक्स इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो 4c0 इंटू हाफ पावर 4, 1/16। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। सिर्फ आपको आर की जगह 1 रखना है। दिस इज 4 into 1/16, विच इज 1/4। पी एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब 4c2 आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4c2? 4c2, 4 into 3/2, which is 6, or that is 3/8. Px is equal to 3 is 4c3 into हाफ पावर 4। 4c3 is 4c1, ये 4 के इक्वल आ गया, और it is 1/4। and px is equal to 4 is 4c4 into half power 4, which is 1/16। चेक इट आउट एक इस फॉर्मूला की हेल्प से, विदाउट कंसिडरिंग ऑल दो 16 केसेस। सोच के देखिए, यहां 4 बार टॉस करा था तो वो 16 केसेस आने थे। एच 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 एच, फिर एच वाले 8 लिख देते केसेस, फिर टी वाले 8 केसेस लिखते, उनमें से हम काउंटिंग करते। तो वो सारी काउंटिंग इस एनसीआर ने ऑटोमेटिकली कर दिया है। तो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। सो डायरेक्ट वो आपके पास आ गया। सो अब तो आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था। यू विल सिंपली गेट दिस टेबल। तो x एंड px 0, 1, 2, 3 एंड 4। साथ में एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखिए। पिछले क्वेश्चंस में क्या रहा था, अगर आपको मैं इस पार्ट में ऐड कर दूं, ऑल्सो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। तो पिछले क्वेश्चंस में सोचिए आपको मीन वगैरह के लिए समीशन ऑफ x इंटू पी एक्स वगैरह करना होता था। ऐसे ही वेरिएंस का अलग फॉर्मूला था। बट क्योंकि ये हमने ऑब्जर्व कर लिया कि ये बर्नौली ट्रायल है, तो मीन का मैंने क्या फॉर्मूला बताया है? एनपी। एन 4 था, पी इज हाफ। डायरेक्ट आंसर। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बताया है? एनपी क्यू, एन पी क्यू। सॉल्व इट। 1, you have your answers. So in a single line, using the formulas of mean and variance, without solving and using the typical approaches और इतना लेंदी हम जाए, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। बट यस, अंडर सर्टेन कंडीशंस वो आपके सामने है।
सर बट इस केस में क्वेश्चन में नथिंग वाज गिवन, तो हमें विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं अज्यूम करना था। लॉजिकली सोचिए, अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हाफ है, आप इसको क्या विदाउट रिप्लेसमेंट ले सकते हैं? इज इट पॉसिबल? इट वाज अ कॉइन, या हाफ है ना कॉइन में, तो वो तो ऑब्वियसली हाफ के बाद हाफ ही रहेगा, हाफ ही रहेगा। इसीलिए ये बाय डिफॉल्ट विद रिप्लेसमेंट में है। अदरवाइज ये बिल्कुल सोचना चाहिए था, आपने सही सोचा, बट यहाँ ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट विद रिप्लेसमेंट में आ गया है। अगेन दिस बर्नौली ट्रायल is not in the syllabus, but number of teachers usually recommend using this, क्योंकि इससे इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ एनसीआर का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया है। सो एवरीथिंग सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो अगर आप एग्जाम में भी कर लेते हैं इन सिचुएशन, देन दैट इज ओके। बाकी अवॉइड करना चाहते हैं लेंदी कैलकुलेशंस में, वो आपके ऊपर है, बट इसे एक्सेप्टेड माना जाता है। प्लीज चेक इट आउट, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप करके बताएंगे। यहां पर अब आप लॉजिकली सोचिए, 6 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब अगर 6 कॉइन्स हैं, केसेस को अगर मैं लिखने बैठ गया तो वो कितने हो रहे हैं? 2 की पावर 6 सैंपल स्पेस में, 2 की पावर 6 विच इज 64। अब मैं वो 64 केसेस अगर एच वाले सारे लिखने लग गया, एक तरह से प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर मी टू सॉल्व। बट अब अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्वेश्चन बर्नौली में जा रहा है, विद इन अ फ्यू मिनट यू कैन सॉल्व इट इजीली। हेड्स के बारे में कहा है, तो इसका मतलब हेड आना इज अ सक्सेस, पीस हाफ। टेल आना क्यू हो गया। एक्सपेरिमेंट क्या बनेगा? एनसीआर P⁻R Q⁻N−R। ये बाई चांस क्वेश्चन ऐसा मैंने लिया जिसमें फिर से क्या हुआ, बेस सेम, पावर आर एडेड। सिंपल, ये बन गया आपका प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। अब आपको फर्स्ट पार्ट करना है। 3 हेड्स का मतलब ये हुआ 6C3 ½ सॉल्व इट, योर आंसर। सेकेंड पार्ट, नो हेड का मतलब x इज इक्वल टू 0, r की जगह 0 रख दीजिए, योर आंसर। सिमिलरली थर्ड पार्ट में देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, एट लीस्ट 1 हेड। एट लीस्ट 1 हेड का मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड का मतलब ये हो गया विच इज 6C0 ½ Similarly, you can talk about the fourth part, not more than 3 heads। नॉट मोर देन 3 हेड्स का मतलब क्या हो सकता है? 3 हेड्स हो सकते हैं, x कैन बी 3 और x कैन बी 2, 1 और 0। use the formula, easily you will have your required answer। लैंग्वेज का मतलब जैसे थर्ड पार्ट में हमने यूज किया है ना, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड is 1 minus probability of
गेटिंग नो हेड, ये हम यूजुअली पहले भी यूज कर चुके हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वेरिएंस और मीन वगैरह के। ये मीन के लिए ये वाला नहीं, मैंने आपको बताया है एनपी, दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में इनफाइनाइट एक्सपेरिमेंट और कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस थ्रू आउट द प्रोबेबिलिटी वी विल फिनिश। प्री बोर्ड्स का आपका 18th जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, इवन नॉट फ्रॉम 15th ऑफ जनवरी, यू विल बी गेटिंग अ डेट शीट सून। सो दैट अब क्या हो जाएगा, 18th जनवरी से होने का मतलब, तो जो आपका एक चैप्टर नंबर 1 पेंडिंग था, अभी के अगर प्री बोर्ड अगर अभी हो रहे थे ना, 4th जनवरी से पहले एक प्लान था, तब हो रहे थे तो चैप्टर 1 नहीं आता, बट अब हम चैप्टर 1 कल से स्टार्ट करेंगे। सो वो सब मतलब पूरा सिलेबस, पूरा पेपर फुल फ्लैश आपका 80 मार्क का वैसा ही रहने वाला है। चलिए, एंडिंग द क्लास, डू नॉट मिस द फोर्थ पीरियड। चलिए, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। लीव द क्लास। हिमांशी, जसनूर, मुस्कान, रमनीत।